Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to Travel with Faza. I am thrilled to take you on a new adventure today as we explore the stunning country of Georgia. I'm super excited to share my experiences and insights with you all. So let's get started on this journey together. So, before we dive into today's video, I want to address something important. I know I have a diverse audience from Hindi and Urdu speaking regions as well as English speaking countries. To make sure everyone can enjoy my content, I have decided to use a mix and match language approach. In today's video, you will hear a blend of languages. So please bear with me and let's make this work together. As we explore this beautiful country, you will notice grape trees everywhere, even in residential backyard. Wine production is a significant part of Georgia's culture and economy. I have already shown you the stunning view of my hotel reception, and now we are embarking on a city tour of Tbilisi, Georgia's vibrant capital. Join me as we discover the city's hidden gems, rich history, and breathtaking architecture. तो आपने होटल का खूबसूरत रिसेप्शन तो देख ही लिया, उसके साथ आपने कुछ जब वीडियो की शुरुआत हुई तब आपने कुछ अंगूर के दरख्त देखे होंगे। यहाँ पे आपको हर जगह पे अंगूर के दरख्त देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ का मेन बिजनेस ही इनका जो है वो वाइन है और वाइन इनकी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, इनके कल्चर का एक हिस्सा है। तो इसीलिए और घर घर में यहाँ पे वाइन बनती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वाइन के अलावा, उसके अलावा यहाँ पे घर घर में वाइन बनती है, जिसके लिए इनके लिए ग्रेप्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फल है। तो यही वजह है कि इस खूबसूरत मुल्क में हर जगह आपको अंगूर के पौधे नजर आएंगे। अभी हम जिस जगह पे मौजूद है उस जगह को पीस ब्रिज कहा जाता है। इसका ओपनिंग हुआ था साल 2010 में। तब से पैदल चलने वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज बन चुका है। सो हियर इज द Tbilisi's आइकॉनिक bow shaped pedestrian bridge known as Bridge of Peace, connecting Reich Park to Old Town. This stunning steel and glass structure illuminate the Khora River with hundreds of LEDs. Since 2010, it's become a key crossing and top tourist attraction, symbolizing the city's beauty and charm. तो इस खूबसूरत ब्रिज के स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की थी इटालियन आर्किटेक्चर ने और लाइटनिंग की डिज़ाइन की थी फ्रेंच डिज़ाइनर ने। तो ये ब्रिज ओल्ड सिटी और न्यू सिटी को कनेक्ट करता है। जब आप ब्रिज के करीब सेंटर में रहकर देखते हैं तो आपको यहाँ से पूरा जो तिब्लिसी है वो नज़र आता है। और यहाँ पे जो मैं फोकस कर रही हूँ वो सारे घर बनाए गए हैं माउंटेन्स के ऊपर और इतने अच्छे तरीके से एक लाइन में उनका कंस्ट्रक्शन किया गया है और जिस तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है, तो आप जब ये ब्रिज के ऊपर आते हो और यहाँ से इसके आसपास का जो पूरा एरिया आप देखते हो तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और यकीन जाने ये ब्रिज दिन की रोशनी में जितना खूबसूरत दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत रात में लाइटिंग्स के साथ नज़र आता है। This bridge has unique design with stunning LED lights so at night. Did you know that architecture is Italian? Lightning designer is French. Structure manufactured in Italy and transported to Georgia in 200 trucks. The bridge comes alive with 4 mesmerizing lightning programs and twinkling LED lights, symbolizing life and peace. The Bridge of Peace serves as more than just a physical connection between two sides of the river. It symbolizes the unity and harmony sought by the people of Tbilisi. Its modern design represents the city's forward-looking spirit while acknowledging its historical roots. That's likely why the bridge is called the Bridge of Peace. I am currently standing in the heart of Tbilisi,
a perfect starting point for tourists. This vibrant sport has been ranked among the 25 most interesting places in the world, making it a must visit destination in Tbilisi. तो फिलहाल मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ उसे हार्ट ऑफ तिब्लिसी कहा जाता है। अगर आप जॉर्जिया विज़िट करते हो तो ये परफेक्ट प्लेस है जहाँ से आप अपने टूर की शुरुआत कर सकते हो। ब्रिज के साथ हम जो रिवर देख रहे हैं उसे कुरा रिवर कहा जाता है और जो ये पार्क देख रहे हैं उसे राइक पार्क कहा जाता है। करने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप बोटिंग कर सकते हो, केबल कार में भी आप यहाँ से बैठ सकते हो। पर अगर आप किसी टूर गाइड के साथ जा रहे हैं तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप ना करें, क्योंकि बोटिंग करने के लिए भी तो अगर आप कस्बे की जाने वाले हो तिब्लिसी से तो रास्ते में जिनवाली डैम करके एक जगह आती है, वहाँ पर बोटिंग और हॉर्स राइडिंग ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे और टूर गाइड भी वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और जहाँ तक केबल कार का सवाल है तो नारिकाला फोर्ट्रेस करके एक जगह है जहाँ पे जाने के लिए आपको केबल कार लेनी ही पड़ेगी। तो आपको केबल कार में बिठा के वो लोग ये जगह विजिट करवाएंगे और फिर वहाँ से वापस आपको केबल कार में बैठ के ही रिटर्न होना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो मैं जॉर्जिया की आगे की सीरीज़ रिलीज़ करने वाली हूँ। उसमें बेहतर यही है कि आप यहाँ पे केबल कार या फिर बोटिंग ना करें। यहाँ पे आप सिर्फ जाए, बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पे वॉक करें, पूरी जगह को देखें, आप सही में एंजॉय करेंगे। और ये दिन में और रात में दोनों टाइम पे इस जगह की खूबसूरती अलग अलग है। तो जिस दिन हमारा एक दिन फ्री था टूर वालों की तरफ से, तो जो दिन हमारा फ्री था उस दिन हमने ये जगह को रात में विज़िट किया था और नेक्स्ट डे टूर गाइड हमें वो दिन में लेके गया था जब टूर की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले उसने इसी जगह पे वो हमें लेकर गया। तो अगर आपके पास भी फ्री टाइम है तो मैं यही कहूँगी कि आप रात में भी एक बार ये जगह को विज़िट ज़रूर करें। तो जो नेक्स्ट प्लेस आता है वो ये चर्च है, जॉर्जिया का सबसे पुराना और हिस्टोरिकल चर्च है। तो ये पूरा चर्च बाहर से अंदर से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ यहाँ पे जाते हुए कि जॉर्जिया के लोग ये मानते हैं कि जिसे मुस्लिम्स बीबी मरियम के नाम से पहचानते हैं और क्रिश्चियन मदर मैरी से जानते हैं। तो जॉर्जिया के लोगों का ये मानना है कि मदर मैरी ने जॉर्जिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की थी और उन्हें जॉर्जिया का प्रोटेक्टर माना जाता है। तो ये मदर मैरी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हर एक चर्च में आपको फ्रंट में मदर मैरी की एक इमेज दिखाई देगी। और टूर गाइड ने हमें ये भी बताया कि मदर मैरी के कपड़े वेस्टर्न जॉर्जिया के एक चर्च में जिसका नाम है सेंट मैरी चर्च में रखे हुए हैं। That's all for today. I hope you enjoyed my video and found the provided details helpful. Before I go, I would like to summarize Georgia in a few words. Imagine a destination with beautiful mountains, lush greenery, stunning water, pleasant weather, fountains, and blend of amazing modern architecture with ancient history. Look no further than Georgia, the perfect place to plan your next holiday, where you will find all these and more. In next video, we'll take you on an unforgettable journey to one of Georgia's oldest historical church, followed by a thrilling ride on a scenic rope car.
and many more exciting experiences. So stay tuned for an epic adventure in Georgia and get ready to explore the hidden gems of the incredible country. Thanks for watching. If you haven't already, please subscribe to my channel for more exciting content. Do not forget to like and share this video with your friends and family. Your support means the world to me.